Hi Dipan, congratulations for your new offer. So tell me, how was the journey? मतलब अभी आपका पोजीशन चेंज हुआ है, so you got SAP consulting job and you राइट upgraded from SAP end user. सर फिलहाल मुझे सपोर्ट कंसल्टेंट में मिला है सर एस4 हाना में And earlier you are working as एज ए SAP एंड end यूजर। user. राइट सर। ठीक है. So इसमें here I will add something. You proved me wrong. I remember at the time of joining live session, I told you that with Become you should not go with this SAP career or SAP training. But you said no, I will manage with this Become. So although right now you are pursuing MBA, but यस सर। right you the job you got on the basis of Become only. So यस। maybe I'm wrong. You are right. No, but sir, But proud to one be thing wrong I want here. to, no, no, sir, but one thing I want to add, sir, means you are the inspiration. Means you told me that you should pursue MBA, and this added me a lot because whenever I tried for any IGP in my TCS only, Mhm. whenever I told them that yeah, I am also pursuing MBA in finance, so that was the add-on in my CV Yeah, and my that is also in my required profile. because tomorrow when you will get any new project or you will join any other company, so professional qualification should be there. So it is Right. 100% it is required. But it is good thing that on the basis of your current qualification become still they consider you and you got the support or Right. consulting job. You need to address few queries I have listed here. Okay. So like how was your preparation? What you are doing? Let's say your during training how was your preparation, after training what you did, so उसमें बताओ कुछ. Sir, as sir already you know, sir, means as when I was like an end user, first of हम्म. all, I came to know about that if I switch myself to consultant, then there will be a huge scope in my career growth. हम्म. So at that time, when I came to know that, first of all, I checked as I was pursuing, I was doing my job also. So I was searching for an institute where there can be like online education. So at that time, I started searching for from in YouTube and in Google also that where I can get a good ERP teacher, I mean, who can train me in SAP as a consultant. So after searching, after checking everything a lot, spending a time lot, then I came to know about you, sir. That yeah, Pradeep sir is No, okay, yes. that's fine, but Okay. during So training, during training time how was your preparation, like how you are focusing, what was your approach during training, then I will. trainings are first of all after completing the classes, then I again started from the first class that I used to check every class, and I again took server access, and whenever I used to do, first of all I used to see the full class. Okay, Mhm. after seeing the full class, I noted down that what are the things, means what are the from where is the path is flowing, means every assigning organization structure everything and creating comparison. Then after that I used to implement those in the server. And Okay. at that time, I faced huge issues or errors. At that time, I also used to text user because I am facing this type of errors. So after doing this slowly, it was take time slowly. After that, when I thought that I am ready to face any internal job change. So at that time, उस टाइम मैंने सर at that time मैंने प्रोजेक्ट में TCS में आपने digital कंपनी में profile अप्रोच किया होता कि मैं है। Yeah, sir. There is a digital profile in TCS. Yeah, so there I updated that I have a knowledge in SAP consultant. So at that time when I have updated that, so sir वहां से फिर मेरे पास opportunity आने लगा आस्ते आस्ते. So सो जो उसके ये जो बाद जब मेरा आईजीपी में मतलब आपने आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया और तब आपने आपने वहाँ पे इंटरनली अपडेट कर दिया कि आई एम अपडेट रेडी कर फॉर इंटरव्यू. सो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या किया? तुमको रिलीज दे रहे हैं इस प्रोसेस से, सो दैट यू कैन फाइंड अ बेटर प्रोसेस वेयर यू कैन डू एन एक्टिविटी में वो काम कर सकते हो जिसमें तुमने ट्रेंड हो एज अ कंसल्टेंट. तो कंसल्टेंट, उसके सो बाद वो हाँ. जो, हाँ वो ही मैं जानना चाह रहा हूँ. जैसे आपने बता दिया कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हूँ, तो उन लोगों ने कितने इंटरव्यू किए, क्या राउंड किया, वो सब डिटेल में बताओ. हाँ, उसके बाद सर डेली मेरे पास कॉल आता था सर तरह तरह कहाँ के से, लोगों तुम्हारे से. इंटरनल हाँ, से और इंटरनल या कॉल आउट? आते थे, मैनेजर्स कॉल करते थे, बहुत ओके. सारे थे. वॉलमार्ट से कॉल आया था, मतलब टीसीएस का ही काम होता है वॉलमार्ट का, वहां से आया सर, केपीएमजी से आया, हाँ. एशडा से आया. तो वो लोग मुझे पूछते थे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तो मैंने वहां बोला कि मैंने एज इंडिविजुअल काम किया था, मेरे पास नॉलेज है, मैंने आई एम ट्रेंड इन एसएपी कंसल्टेंट एस4 हाना. सो आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि ठीक है, वेल एंड गुड,
सो वहां पर फिर वो लोग ने एक एवोल्यूशन टेस्ट लिया मेरा। तो हम्म। उसमें सर तरह तरह के क्वेश्चंस रहते थे, और वो जब जो मैंने टेस्ट हो रहा था मतलब कैसे हो रहा था, मतलब जैसे सिस्टम में ऑनलाइन टेस्ट और नहीं सर, किस वो किस। सर बाय कॉल सर, कोई ओके ओके, देन दैट मीन्स कंसल्टेंट कॉल टेक्निकल, करते थे। हाँ टेक्निकल राउंड होता था शायद। टेक्निकल राइट। हाँ हाँ, टेस्ट मतलब वो टेक्निकल राउंड, यस ओके। वो कॉल करते थे, करके पूछते थे वो क्वेश्चन, सब कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे। और जब वो क्लियर होता था, फिर वो लोग मुझे मेल भेजते थे, ऑफिशियल मेल, टू ऑनबोर्ड देयर प्रोसेस। इसी तरह से सर मैंने 4-5 प्रोसेस से मेरा ऑनबोर्ड का मेल आया है, इसी एज अ मतलब सपोर्ट। विद इन टीसीएस आपने आईजेपी के लिए चार कितने कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने टेक्निकल राउंड्स इंटरव्यू दिए होंगे? सर मैंने टोटल 7-8 दिए हैं। उसमें से 5-6 में मेरा कॉल आ गया, मतलब मेल आ गया कि यू कैन ऑन बोर्ड नाउ प्रोसेस। ओके, तो मतलब मतलब हर जगह पे एक टेक्निकल राउंड होता था, और वो टेक्निकल राउंड होने के बाद जैसे आपने क्लियर किया कि यू कैन ऑन बोर्ड द प्रोजेक्ट, राइट? ये राइट राइट सर, राइट। तो जब जैसे 6 में आपका कॉल, अच्छा हाँ, वो टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चन होता था किस तरह से, क्योंकि वो सर दे नो दैट यू ऑलरेडी विद दैट राइट। ऑर्गेनाइजेशन एज ए एंड यूजर काम कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे टेक्निकल नॉलेज है, तो किस तरह से क्वेश्चन होता था? सर क्वेश्चन ऐसा होता था, पहले सर वो पूछते थे कि तुमने किस प्रोजेक्ट में काम किया, तुम्हारा एंड यूजर का काम क्या था, मतलब ओके, तुम किस यूजर फील्ड का में काम काम पूछ करते लिया, थे। राइट, हाँ। ओके ओके। उसके बाद सर वो पूछते थे, वो पूछने के बाद सर वो फिर तरह तरह के क्वेश्चन पूछते थे। मेनली सर मैंने एक चीज फोकस किया है सर, ये लोग मतलब बीपी वेंडर कस्टमर, इस पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब जो पेमेंट प्रोग्रामिंग रहता है ना सर, पूरा हम्म एआरएपी प्रोसेस ये लोग ढूंढते हैं। मतलब पूरा प्रोसेस फ्लो बताना पड़ता है इनको, कि हम्म फ्रॉम स्क्रैच टू हम्म फुल कॉन्फ़िगरेशन। हम्म। यही सब क्वेश्चन आता था सर। और जो दो प्रोसेस सर मैंने बोला जहां मेरा नहीं हुआ था सर, क्योंकि वहां सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लोग खुद ढूंढ रहे थे। अच्छा, वो तो ये सपोर्ट में हुआ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं हुआ? नहीं सर, वहां बोल रहे इम्प्लीमेंटेशन, कि ओके, इम्प्लीमेंटेशन पे मतलब वो दे नो के आप यूजर से आ रहे हो, तो इमिडिएटली इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मली नहीं देते हैं। सो राइट। दैट इज फाइन, बट नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल रिजेक्शन नहीं हुआ वो। नो 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 नो। ओके ओके। वो सर बोल रहे थे कि सपोर्ट में 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी हम लोग तुमको हाँ, इम्प्लीमेंट वो करने देंगे। इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्टली हाँ नहीं लेते, राइट, हाँ। ओके। हम्म, क्योंकि दे नो दैट यू आर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज एंड यूजर। ओके। राइट। सो मतलब कितने टाइम का होता था, कितने टाइम का, मतलब ये जो इंटरव्यू होता था, टेक्निकल राउंड्स होता था, ये टेलीफोनिक होता था? हाँ हाँ। हाँ टेलीफोनिक। हाँ, कितने टाइम के होता था नॉर्मली? सर ऑन एन एवरेज सर 15 मिनट, 15-20 मिनट कॉल चलता था। वो लोग हम्म। तरह तरह के सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते थे। सिनेरियो क्वेश्चन होता था, राइट, राइट ओके राइट। ओके। सो एनी स्पेसिफिक, मतलब आपने कुछ खास प्रिपरेशन किया होगा, कुछ टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया होगा आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, ऐसा कुछ था? हाँ सर, प्रिपरेशन रिलेटेड सर मैंने ये बीपी पार्ट जो था सर, बिजनेस पार्टनर एस4 हाना में, ये हम्म सब, फिर वेंडर कस्टमर, ये सब, फिर सर और एक क्वेश्चन सर, ये एपीपी जैसे हम लोग का होता है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, हम्म। उस पे भी फोकस करना पड़ता है सर। मेरा नहीं नहीं, ये तो जितना आप भी। बोल रहे हो कि उनके क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब आप जैसे आपने बताया कि मैंने मल्टीपल टाइम कंपनी कोड में एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन किया था, हाँ प्रैक्टिस किया था, ऐसे ही कुछ खास बिजनेस प्रोसेस में आपने फोकस किया था, या सबको इक्वली सब वेटेज सब दिया था? सब सर, सब सबको, इक्वली सर, सब इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, राइट राइट। हाँ। ओके। सो ये मतलब और कई कोई बाहर से इंटरव्यू, हैव यू फेस्ड एनी, लाइक एनी अपीयर्ड एनी अदर साइड इंटरव्यू अदर देन योर करंट कंपनी? मतलब जैसे नॉर्मली रिज्यूम अपलोड कर दिया और बाहर से कोई कॉल आया, नहीं आया, या नहीं किया ट्राई अभी तक? नहीं सर, क्योंकि सर पहले मुझे सर वो प्रैक्टिकल एक नॉलेज चाहिए सर, मतलब हैंड्स ऑन नॉलेज एक बार मुझे मिल ओके, तो जाएगा, मतलब ट्राई देन नहीं सर किया वो और अदर देन कंफर्टेबल। किसी जॉब पोर्टल में ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं, पहले यहाँ कर लूंगा सर। एक क्वेश्चन मैं जो सबसे पूछता हूँ, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट इफ समवन इज विदाउट हैविंग एनी एसएपी एक्सपीरियंस? जैसे नॉर्मली आपने क्या किया, पहले यूजर में काम कर रहे थे, फिर यूजर से आपने टेक्निकल नॉलेज को अपग्रेड किया, देन यू स्टार्टेड थिंकिंग ओके आई शुड गो फॉर एसएपी कंसल्टिंग। मैं बोल रहा हूँ राइट। एक किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एसएपी में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी अकाउंटिंग वगैरह कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन एसएपी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, what do you think, that person will get the job in current scenario, or difficult? What do you think as per your thought process? सर डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट सर, क्योंकि सर मतलब मेरे, अगर अगर मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है टीसीएस में, मैं इन माय ऑर्गेनाइजेशन सर, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज सर क्वेश्चंस विल बी लाइक डिफरेंट पार्ट्स, क्वेश्चन इज नॉट
नहीं मतलब नहीं, क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन बाद की बात है, पहले आप समझ रहे हो मेरी प्रोफाइल। क्वेश्चन? लेट्स से आई एम थिंकिंग आई विल गो फॉर एसएपी कैरियर, बट अभी मैं किसी नॉर्मल अकाउंटिंग फॉर्म में काम कर रहा हूँ या टैली में काम कर रहा हूँ, ऐसे कोई स्मॉल उसमें काम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी एसएपी का एक्सपोजर नहीं है, एंड आई थॉट लाइक आई विल गो फॉर एसएपी कंसल्टिंग कैरियर। इज इट पॉसिबल, नॉट नो पॉसिबल? नो सर, और इफ नो इट इज नो। पॉसिबल, हाउ डिफिकल्ट इट इज, और नॉट हाँ पॉसिबल? सर, उसके लिए सर आपको पहले एंड यूजर में जाना पड़ेगा। और एंड यूजर से भी आप स्विच नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि एंड यूजर एक छोटा सा काम है कि हम्म। पर्टिकुलर आपको बोला जाएगा कि तुम रिपोर्ट देखो एक या पर्टिकुलर फिर एरिया में इनवॉइस काम चेक करना है, करो। राइट हाँ राइट। हाँ, But उससे बाहर thing आपको is, जाने नहीं if you देगा। don't have any exposure to SAP nowadays or in current situation, it's very very difficult, because क्योंकि उनको ना बहुत रेडीमेड कैंडिडेट मिल रहे हैं जो कि ऑलरेडी एसएपी में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल, चाहे वो एंड यूजर हो, सुपर यूजर हो, पावर यूजर हो, कुछ भी हो। सो इन दैट केस, इफ यू हैव अंटिल अनलेस वेरी हाई क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस केस में वो हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट उस केस में हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में जाओगे, सो इट्स ट्रू, लाइक दे आर लुकिंग एसएपी एक्सपीरियंस इन एनी रोल, चाहे आप किसी भी यूजर में हो, सुपर यूजर, पावर यूजर, टेस्टर, कुछ भी हो, अगर आप नहीं हो ना, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो यू आर करेक्ट, मतलब कंपनीज दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन द कैंडिडेट कि उसको राइट। ग्रूम करे, ट्रेनिंग करे, फिर उसको रेडी करे और उसको बाद में प्रोजेक्ट में डाले। जैसे आपके केस में क्या हुआ, दे हायर यू, दे चेक योर क्वालिटी, दे चेक योर नॉलेज, दे सेड ओके अनबोर्ड, इमीडिएटली अनबोर्ड द प्रोजेक्ट, इमीडिएटली सब कुछ, मतलब बहुत जल्दी में हो रहा है, राइट? अब जैसे नॉर्मल कोई कैंडिडेट को आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने जैसे किया है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, एनवायरनमेंट के साथ फैमिलियरिटी नहीं है, तो उस केस में फिर कौन रिस्क लेगा कि उसको हायर करो, उसके बाद ट्रेन करो, देन, और जबकि मार्केट में अगर कोई नहीं हो तो हायर कर ले। व्हेन कैंडिडेट्स आर देयर, टू मच रिसोर्स अवेलेबल, क्यों कोई अपनी मतलब टाइम देगा, रिसोर्स अपनी सैलरी फ्री में 3-4 महीने की देगा? सो दैट इज राइट। वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। Yes, sir. It is very difficult. I told them that I have the knowledge, but that's why there was a positive sign for me that they are ready to onboard me, because this candidate knows everything. Just onboard him from हाँ, two तो to three इसलिए days. जो He will face the लोग client. इमीडिएटली मतलब कोई ट्रेनिंग कर लिया और इमीडिएटली दे आर थिंकिंग ओके वी शुड गो फॉर एसएपी कंसल्टिंग। Right. सो No, दैट it's इज tough. बिकॉज व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ आप इमीडिएटली कोई ट्रेनिंग मत करो, पहले आप उसको एक्सप्लोर करो, देखो क्या मार्केट में सिचुएशन है, जॉब है कि भी नहीं है, राइट? और व्हाट इज द राइट प्रोसेस। ऐसे नहीं कि Right. आपने ट्रेनिंग कर लिया आपको जॉब मिल गया, कैसा है? इट्स नॉट दैट इजी। डेफिनेटली Right. हाई पैकेज जॉब है, सब बेटर, अच्छा है, लेकिन it's not that easy. That is what I was asking. Right. So any suggestion, anything you want to, जो लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ उनको मतलब आप उनको सजेस्ट करोगे? सजेशन यही है सर, पहले तो प्रॉपर, अगर ऑब्वियसली सर, जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है वो तो तुमको कभी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तरह तरह के रिसोर्सेस है जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कहीं से अगर आप पहले ट्रेनिंग लो। और मैं तो बोलूंगा इसमें, हियर आई विल ऐड समथिंग, इमीडिएटली डोंट ज्वाइन एनीवेयर। जब आपने सोचा कि मैं ये कैरियर करूंगा, पहले मतलब जैसे यूट्यूब से लर्न करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ अवेलेबल है फ्रीली, ठीक है? बेसिक तो चीज पहले देख लो। हाँ, बेसिस उसमें करो, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसको देखो ये है भी आपके लिए, है भी या नहीं। राइट। शुरू में लगता है कि हाँ उसने कर लिया मैं भी कर लूंगा, पहले उसको देखो इस जॉब के लिए आप है, क्योंकि एसएपी इज नॉट द ओनली ऑप्शन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो जब आप एज मच एज पॉसिबल एक्सप्लोर करो, फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास 3-4 महीने, अच्छा एक कितना टाइम आपने प्रिपरेशन में दिया दिया होगा, अदर देन ट्रेनिंग टाइम? आई सर थिंक अदर देन ट्रेनिंग टाइम, 4 मंथ्स। हाँ, 4 4 मंथ्स, 4 5 मंथ्स। 4 मंथ्स होगा ना? फोर तो फाइव इतना मंथ्स टाइम क्यों लगा, मतलब सर, जैसे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट? सेमिस्टर का भी एग्जाम था सर, यही जस्ट 2 दिन ओके पहले, ओके तो ओके, हाँ हाँ हाँ। उसमें भी मेरा पढ़ाई करके उसके बाद ही मैंने फिर रिवाइज करना स्टार्ट किया, उसी में हुआ सर। ओके, हाँ, नहीं तो इतना फिनांस का टाइम मेरा नहीं जैसे लगना एग्जाम चाहिए। सो कंप्लीट हुआ। आफ्टर ट्रेनिंग रिगर मतलब आफ्टर ट्रेनिंग 2 मंथ्स, आई थिंक टू 2 months मंथ्स enough, enough. 2 मंथ्स Two है ना? months is enough. Yeah, हम्म। 2 months is enough. सो सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दिस कन्वर्सेशन? In this conversation, sir, main thing, sir, मतलब सच में सर, मुझे एंड यूजर में इतना पता ही नहीं था कि क्या होता है कंसल्टेंट में। इतना वास्ट चीज है सर, मतलब जब ट्रेनिंग लेके, यहाँ से स्किल सेट से ट्रेनिंग लेके, आपसे ट्रेनिंग लेके जब मैं फील्ड में उतरा, तब पता चला कि सर अभी तो इसमें शुरुआत हुआ बहुत है, स्कोप आगे है। तो और भी बहुत कुछ है, अभी तो सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला है, उसके बाद तो हाँ, मतलब कैरियर अभी स्टार्ट हो रहा है। देयर आर हाँ, सो मेनी थिंग्स आर देयर। So स्कोप बहुत बड़ा है it सर, वाइड it's just स्कोप है। first step. It is first Yeah. step for your SAP career.
सो आगे राइट बहुत कुछ है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट करोगे। ओके सो ओके, प्रोजेक्ट का नाम मत लेना। इज इट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल, गुड, वेरी गुड। सो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में ना जो एक्सपोजर होता है वो कम होता है, बहुत कम मिलता है सीखने को। सो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आर गुड। और नेक्स्ट जब आप स्विच करोगे, चाहे वो सेम कंपनी में हो या दूसरे कंपनी में जाओगे, तो वो वैल्यू ऐड करना। और आई विल ऑल्सो सजेस्ट, जब आपका मतलब टाइम मिले एमबीए के साथ, तो गो फॉर एसएपी सर्टिफिकेशन ऑल्सो। सो राइट सर। हाँ, सो एसएपी सर्टिफिकेशन प्लान करके उसको करना। क्योंकि क्लाइंट देखेंगे फ्यूचर में कि कंसल्टेंट इज सर्टिफाइड, अभी तो मिल गया प्रोजेक्ट, बट आगे जब आप थोड़े से आपके एक्सपीरियंस हो गया, सो नेक्स्ट जॉब स्विच करोगे, देन दैट टाइम दे विल लुक इनटू दैट whether consultant is SAP certified or not, because they are thinking that our resource should be certified one. So It is ये an चीज भी add-on, sir. It is like an definitely add-on. it is not add-on, like when you will go for international projects it's almost mandatory। और कल को आपको कंपनी भी पीछे पड़ जाएगी कि सर्टिफिकेशन करो, एंड दे विल स्पॉन्सर ऑल्सो सर्टिफिकेशन, दे विल राइट रिम्बर्स सर, ये यू। मैंने सुना है सर, वो हाँ वो स्पॉन्सर। 100%, इस तो 100% करेगा, वो पीछे पड़ जाएंगे। आपका कोऑर्डिनेटर स्टार्ट हो जाएगा कि आप जल्दी से सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन और सर्टिफिकेशन कर लो, सो इट विल गो। राइट सर, राइट सर। So in last one question, so हाँ how difficult it is to get into SAP job? Honest feedback, मतलब easy है, difficult है, या मतलब कैसा है, मतलब as per your सर, एज पर, अगर एज पर मी सर, मेरे हिसाब से सर इजी है अगर आप उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिएगा सर। एससीपी अगर आप गैप ले लीजिएगा, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग आप सोचिएगा कि हाँ बाद में करूंगा, बाद में सर्वर लेके प्रैक्टिस करूंगा, देन यू गोना फॉरगेट एवरीथिंग सर। आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना होगा, देन इट विल बी वेरी इजी सर। मतलब आपको तब याद हो जाएगा कि ऐसे 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 और इसको अदर समझ। देन आपका ऑफिस टाइम, आप कितना टाइम देते थे प्रैक्टिस के लिए? सर ऑफिस से आके 2 घंटा 1 घंटा जैसे जब टाइम होता था, और वीकेंड में तो सर 3-4 घंटा बैठता था सर। एक एक दिन में 1.5 क्लास 2 क्लास देखता था बैठ बैठ के कि कैसे अच्छा, क्या हो। मतलब रिकॉर्डिंग देखते थे और उसको हाँ, प्रैक्टिस करते थे। रिकॉर्डिंग सर, आपका रिकॉर्डिंग देखता था, उसी को प्रैक्टिस करता था कि कैसे क्या सो होना मतलब ये कह सकते हैं ऑन एन एवरेज ऑन वीकडेज 1.5 hour एंड होना। वीकेंड एज मच टाइम यू कैन स्पेंड। या एज मच आई कैन डू। एंड कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, ये नहीं कि एक हफ्ते कर दिया और 3 हफ्ते छोड़ दिया, ऐसा नहीं। नहीं 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 नहीं, तब सर वो सब भूल जाते हैं सर हाँ, कि क्योंकि कैसे जितना क्या आप उसमें सिस्टम के साथ इन्वॉल्व रहोगे, नई नई चीजें पता चलेगी। सो राइट सर। इट्स एसएपी इज जस्ट लाइक वन, यू कैन से इट्स वन ऑसन। जितना आप उसमें एक्सप्लोर करोगे उतना उसमें करेगा। जैसे अगर मैं अपनी बता रहा हूँ, 19 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन शायद कितना परसेंट आता होगा, 30-40% ही आता होगा, या उससे भी कम आता होगा, पता नहीं। सो इतना कुछ है, मतलब एक नए वर्जन में कुछ नया पता चलता है, नया आता है। हर प्रोजेक्ट इज यूनिक, उसमें कुछ नया मिलता है। तो इसलिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो मतलब जॉब, एक जॉब मिल गया, फिर आगे जॉब के लिए फिर आपको राइट अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, फिर आपको नई चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे आपने मेन फोकस किया था अभी, जैसे रिसीवेबल पेएबल, राइट एफआई राइट। पार्ट मेनली। नेक्स्ट आपकी टारगेट ये होना चाहिए कि आई शुड एक्सप्लोर मोर ऑन कंट्रोलिंग, क्योंकि यस कंट्रोलिंग सी। भी बहुत कुछ है उसमें भी आपने लेकिन कंट्रोलिंग आपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया था कि नहीं किया था? क्योंकि ट्रेनिंग में तो कंट्रोलिंग के हमने सब कुछ किया था। सो आपने वो हाँ नहीं सर, किया था? प्रिपरेशन सर कंट्रोलिंग में भी किया था सर, पर मैंने बोला सर अभी एंड एंड ओके, मतलब जो ईयर एंड टू जॉब कर रहे में जॉब में हैं। यस। कंट्रोलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं नहीं, इतना नहीं अभी था। वो लोग फोकस्ड कर रहे एआरएपी का पूरा प्रोसेस, ये सब हाँ, वो एफआई वो लोग एक्चुअली सब कर आपके केस में हुआ क्या था, वो दे नो दैट दिस पर्सन इज वर्किंग विद अस एज अ एंड यूजर। सो एंड यूजर रहे। से ये बोल रहा है कि मुझे टेक्निकल नॉलेज है, मैं आया हूँ। सो इमीडिएटली वो क्या करेंगे, आपको एक बहुत अच्छा वाला प्रोजेक्ट तो नहीं देंगे, तो धीरे धीरे द क्वालिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, देयर राइट। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू विल इंक्रीज। फिर होगा क्या, प्रोजेक्ट की क्वालिटी बढ़ेगा, जब ऑब्वियसली जब अप्रेजल होगा, आपकी पे पैकेज बढ़ेगा, तो उस हिसाब से फिर एक्सपेक्टेशन भी होगा। तो आप जो अभी तक जितना नॉलेज है उसमें आप नहीं कह सकते हो कि आई विल सर्वाइव फॉर एवर, आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, दैट इज और द सर वो प्रोजेक्ट से भी बोला गया है कि तुम सपोर्ट में काम करो, एंड इफ यू परफॉर्म वेल देन वी विल एश्योर यू, वी हैव इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, वी विल इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, स्विच ये यू तो टू नॉर्मल इंटरनेट। प्रोसेस है, अगर परफॉर्मेंस आपके बेटर होगा फिर आपको कंपनी प्रमोट करेंगे, कंपनी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन में देंगे, तो राइट। इट्स गुड थिंग, ओनली थिंग बट हियर योर लाइक इट्स स्टार्टिंग ऑफ योर करियर इनटू दिस राइट। आईटी। यस, इट्स नॉट लाइक एंड के मुझे जॉब मिल गया तो सब अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। राइट, जॉब मिल गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट है कि मुझे कैसे नेक्स्ट बेटर प्रोजेक्ट मिलेगा, मैं किसी बेटर पोजीशन में जाऊंगा या कोई और कंपनी में जाऊंगा, ये सब होना चाहिए। और इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। राइट ये सर। चले। और ओके, थैंक। प्रैक्टिस रखना होगा सर, प्रैक्टिस हाँ, करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो तो हमेशा रहेगा, और वो आप अभी नहीं, वो हमेशा रहना पड़ेगा आपको अपग्रेड, कि यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। राइट। ओके, थैंक यू दीपेन फॉर थैंक यू योर सर। टाइम एंड योर सजेशन। सो क्योंकि आज तक ना आईजीपी
क्या एक नहीं था, किसी ने कोई अपनी शेयर नहीं किया था मेरे प्लेटफॉर्म पे। सो नॉर्मली जॉब तो हुआ था, लेकिन आईजेपी का नहीं, तो इसलिए मैंने चाहा था कि आप क्या प्रोसेस था आईजेपी का, सो दैट लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन एंड यूजर, दे वांट टू अपग्रेड थ्रू आईजेपी। सो क्या प्रोसेस था ये? अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू हाँ ऐड एट प्लीज गो द अहेड। सर, कि सर अगर आईजीपी के लिए जैसे हम लोग में डिजिटल प्रोफाइल होता है, सो इन एवरी कंपनी देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ऐड योर एड ऑन नॉलेज व्हिच यू हैव। सो हम्म जैसे ही कोर्स हो जाए सबसे पहले वहां अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि सर जो रिक्रूटर है हम्म आईजीपी के अलग हम्म प्रोसेस है, वो हम्म लोग आस्ते आस्ते लोग फिल्टर करके फिर चेक करते हैं, तो फिर इट विल टेक टाइम लाइक फॉर 1 month। आफ्टर हम्म। दैट देयर विल बी एम्पल number of opportunity for you to switch to SAP consultant. This was my हाँ मैंने है, इस हाँ तरह। यस।